دیگر علماء و شعراء سامعین و حاضرین، پردے میں رہنے والے خواتین، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو سلام، مسجد نبی کے صبح شاموں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں نے سلام کیا، کیا آپ کے کان تک کی آواز پہنچی؟ اگر پہنچی ہے تو پھر سے میں سلام کرتا ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا مولانا محمد علی العالمین جميعا وَاحْتَمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُذْنِبِينَ الْمُتَلَبِّسِينَ الْخَطَّائِينَ الْهَالِكِينَ شَفِيعًا فصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ وعلی کل من ہوا محبوب ومرضی لدیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المبین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بلا تمہید آئیے ہم رات مل کر سب سے پہلے امام الانبیاء کی بارگاہ میں اپنے لب و لہجے میں بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم مولانا محمد وعلی آلہ مولانا محمد حبیبنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرات کھانا کھا کے آئے ہیں، کھانا کھا کے اگر آئے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے ثبوت دے، کہیں یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے یا رسول اللہ۔ شعر سنے، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ بے شک اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن۔ اگر اللہ نے اگر آواز دی ہے تو بلند آواز سے بولیے، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن۔ اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان۔ احسان تھا، احسان ہے، احسان۔ اب لگ رہا ہے کہ لوگ بیدار ہو رہے ہیں۔ اور درود شریف پڑھ رہا تھا، لگتا ہے کہ بولی نہیں نکل رہی تھی۔ اپنے لب و لہجے میں جو بہار بنگال کا جو لہجہ ہے، ارے پورے بھارت کے لوگ سنتے ہیں اسی لہجے کو۔ بابا لوگ نے پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ مولانا محمد حبیبنا شفیعنا۔ حضرات، میں نے کلام پاک کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ العزت و عزت اللہ کے لیے، وَلِرَسُولِهِ اور اس کے رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور تمام مومنوں کے لیے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ منافقوں کو شعور نہیں، وہ جانتے نہیں کہ اللہ کا عزت کیا ہے، اس کے رسول کا عزت کیا ہے، اور تمام مومنین کی عزت کیا ہے۔ حضرات، آپ اور ہم جس پیغام اسلام کانفرنس میں آئے ہیں، حضرات آپ ان کے بارے میں جانتے نہیں کہ اس محفل پاک کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ وہ لوگوں، آپ آ کر کے جلسے
पर तो आए हैं, बाजार और मार्केट में घूम रहे हैं, लेकिन वो लोगों अगर आपको पता चल जाता कि इस महफिल पाक की कितनी बड़ी फजीलत है तो हजरात आप बाजार में नहीं घूमते, आप इधर उधर नहीं टहलते, आके मस्जिद पाक में बैठ जाते। हजरात इसी के लिए तो सरकार को जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा इकराम ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, जब दुनिया वालों के पास जाता है तो कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन या रसूल अल्लाह आपकी महफिल पाक में आने वालों को आप क्या अता करते हैं? हजरात सहाबा इकराम का कहने का मकसद और मंशा ये था, या रसूल अल्लाह, जब दुनिया वालों के पास जाता है तो कुछ ना कुछ मिलता है। हजरात अगर खाने के वक्त जाए तो खाना खिलाया जाता है, पानी पिलाया जाता है, नाश्ता कराया जाता है, लेकिन वो लोगों सहाबा इकराम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब दुनिया वालों के पास जाता है तो कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन या रसूल अल्लाह आपके महफिल पाक में आने वालों को आप क्या अता करते हैं? हजरात हमारे आपके नबी कहते हैं, मेरे सहाबा, दुनिया वाले अपनी हैसियत के मुताबिक दुनिया का माल देते हैं और हम अपने महफिल पाक में आने वालों को जन्नत का मेहमान। बाजार में आकर के टहलते हो, बाजार में इधर उधर घूम रहे हो, अगर तुझे मालूम होता कि महफिले जिक्र मुस्तफा में बैठने से क्या मिलता है तो हजरात बाजार में नहीं बैठते। लेकिन वो लोगों, मैंने कलाम पाक की जिस आयत मुकद्दसा की तिलावत की, रब कायनात इरशाद फरमाता है, वलिल्लाहिल इज्जत अल्लाह के लिए, बोले रसूल ही और उसके रसूल के लिए, वलिल मुमिनीना और तमाम मोमिनों के लिए। वो लोगों रब तबारक व तआला ने आपके बारे में कहा कि आपकी इज्जत क्या है, आपका मकाम क्या है, लेकिन आपने अपने अंदर झांक करके नहीं देखा कि रब तबारक व तआला ने मुझे कौन सा मकाम दिया है, कौन सी बुलंदी दी है। हजरात हमने और आपने अपने अंदर झांक करके नहीं देखा, उसीलिए तो हम मारे जा रहे हैं, उसीलिए तो हम कुचले जा रहे हैं, उसीलिए तो हमें लोग गिरी हुई निगाहों से देख रहे हैं। अगर आप भी मर्द मोमिन अपने अंदर झांक ले तो हजरात वो तारीफ दूर नहीं। आज से 15 साल पहले की आपको मैं बात बताता हूँ। हजरात आप वो थे जब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते थे, कुफ्फार और मुशरिकीन की औरतें आपके मस्जिद के दरवाजे पर कटोरा और प्यालियां लेकर के खड़ी रहती थी। इसलिए कि जब वो दुनिया के डॉक्टरों के पास गए हैं, दुनिया के डॉक्टर ने कहा है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, दुनिया के हकीमों के पास गए हैं, दुनिया के हकीम ने कहा इस बीमारी की कोई इलाज नहीं, दुनिया के तबीबों के पास गए हैं, दुनिया के तबीब ने कहा कि इस बीमारी की कोई इलाज नहीं। हजरात आज से 1400 साल पहले लोगों ने कहा तो कुफ्फार और मुशरिकीन की औरतों से कि किस लिए मस्जिद के दरवाजे पर तुम लाइन लगाए हो, किस लिए कटोरे में पानी लेकर के खड़ी हो। हजरात तो कौमे मुस्लिम के ज़बान के सामने ये कुफ्फार बच्चा शफायाब हो जाएगा। आप तो वो थे, लेकिन आपने नमाज को छोड़ दिया है, रमजान शरीफ आने वाला है, रोजा को आप छोड़ करके अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। हजरात आज देखा जाए हमारे नौजवान को, चाहे बूढ़ा को, चाहे और यानी बच्चों को, हजरात इस्लाम के दायरे से हट तक की जिंदगी गुजार रहे हैं। जवानों का हाल क्या है हजरात आपकी निगाहों के सामने है, बूढ़ों का हाल आप देखें। हजरात मस्जिद से हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज़ आती है, लेकिन वो लोग हमारे बूढ़े तो मस्जिद तक जाते नहीं, नौजवान जाते नहीं और परेशानी की हालत में कब पूछते कि इमाम साहब हमें एक तावीज़ दे दीजिए, इमाम साहब हमारे ऊपर दम कर दीजिए, हम परेशान हैं। हजरात परेशानी अगर आप अपनी दूर करना चाहते हैं तो चलो कहाँ, नमाज के लिए मस्जिद में। जब एक इंसान नमाज पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी परेशानियों को दूर कर देता है। जब एक इंसान नमाज पढ़ता है उनकी तमाम परेशानियां दूर हो जाया करती है। हजरात हर बीमारी, हर परेशानी की इलाज नमाज है, लेकिन हमने नमाज को छोड़ बैठा है। लेकिन आओ लोगों, मैं आपको बताता चलूं, अगर परेशानी से आपको दूर होना है तो आप नमाज पढ़े। सरकार गौसे आजम के